اپنا ایم اچیو کرنا تھا ہاں. یا آپ کو سروائیول کے لیے؟ بس مجھے سب کچھ ایکسپلور، مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا تھا، اس دنیا کو، اپنی لائف کو ایکسپلور کرنا تھا. وہ جس طرح بھی مجھے لے کے جا رہی تھی بس میں اس کے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا اور سب کچھ کرنے کا شوق تھا. کوئی پلاننگ نہیں تھی اس وقت کہ مجھے کیا پلاننگ بیسک چیزوں کی انسان کرتا ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ قدرت اس کو خود آپ کے ارد گرد اس کو مولڈ کرتی ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کسی چیز کے پیچھے کئی دفعہ نہیں ہوتی اور نہ ہونے والی چیزیں اچانک ہو جاتی ہیں. اور میں تو یہ اب یہی سوچتا ہوں ہر وقت کہ شاید واقعی ہی آپ جتنا بھی ٹرائی کریں آپ کے اوپر ایک جو میجر ایک ڈائریکٹر جو ہمارا خدا ہے اس پہ ہے یقین ہے بہت زیادہ بہت زیادہ. آپ مطلب کہ سب کچھ کیا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کے لیے تو کوئی ہمیں فلسفہ یا کوئی کچھ بھی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے یو نو. تو اگر عامر اگر یہ آپ کے اندر یہ سوچ ہے نا، مطلب ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ سوچ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، یہ سب چیزوں کو ایک بیلنس کے ساتھ چلا رہا ہے، تو پھر ہمارے اندر بڑا ایک سکون اور پیس آف مائنڈ آ جاتا ہے نا. بالکل. جب بھی آپ کے ساتھ میرے خیال میں جب برا ہوتا ہے تو تب بھی سوچیں کیوں، اور اس میں بھی 4-6 اچھی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو obviously. تو جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تب بھی آپ یو نو تو مطلب کہ آپ تو ہیں، ہم تو ہیں ہی، کب سے کائنات ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی، اور کتنے کتنے لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں، اور کئی دفعہ کتنی غلط چیزیں کئی دفعہ کہ اوپر سے دیکھو تو کتنی صحیح نظر آتی. it's all about perception. تو لیکن ہر انسان جو ہے وہ خدا کا لاڈلا ہے. وہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو برابر کا وہ پیار کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں صرف اپنے پیار کی پہچان جو پالے وہ بہت ضروری ہے. You have to know that. I mean otherwise I will not be sitting here یار، میں اس دنیا میں نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں ہر وہ انسان جو اس وقت دنیا میں زندہ ہے وہ بہت لاڈلا ہے اور اس کا بڑا کنیکشن ہے. وہ ہم اپنے آپ سے اس چیز کو کبھی درگزر کر جاتے ہیں، کبھی اس کو اکنالج نہیں کرتے، بٹ اپنے اندر یقین رکھنا بہت ضروری ہے زندگی. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ان ہمارے ساتھیوں کا بڑا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو، ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس کی بہتری ہے کیا، آئی ڈونٹ نو، ہمیں کچھ دوسری پکچر نظر آتی ہے، جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، جو بھوکے سو جاتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے بغیر مر جاتے ہیں، جو اپنے پیچھے پیاروں کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ کیا، تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، بڑے مزیدار بات چھڑی ہیں. تو اب چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بھی کوئی اچھی اور مزیدار سی بات آتی ہے بیچ میں بریک ضرور آتی ہے، تو یہ بریک سے گزر کر آنا ہے واپس، اور اس کے بعد ہم کچھ اور بھی مزے کی باتیں کریں گے. ہمارے پانوج بھی ساتھ موجود ہوں گے، راجہ ریاض صاحب. آپ کے بڑا یقین ہے آپ کو قسمت پہ، تو تھوڑا سا وہ بھی آپ کو آ کے کچھ نئی باتیں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی باتیں جانیں گے کہ ہمارے ان ساتھیوں کا پھر کیا، کہاں اسے فٹ کیا جاتا ہے. وہ بھی تو اللہ کے بہت بڑے اچھے لاڈلے ہیں. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. پیش ہے مشین کا اسپیشل پاؤڈر سرف ایکسل میٹک. اس کے پاور برسلز دیں کالرز اور کفس پہ بھی ہاتھ جیسی دھلائی. سرف ایکسل میٹک، ہاتھ جیسی دھلائی اب مشین میں. آخر اسے جیل ہو ہی گئی. میری غلطی نہیں ہے، سب نے اسے قصوروار مانا. دیکھو تم نے کیا کیا، یہ داغ دیکھو. میری غلطی نہیں ہے. وقت بس آ ہی گیا تھا کہ اچانک رک جاؤ، غلطی مشین کی نہیں، میرے پاؤڈر کی ہے. پیش ہے مشین کا اسپیشل پاؤڈر سرف ایکسل میٹک. اس کے پاور برسلز دیں کالرز اور کفس پہ بھی ہاتھ جیسی دھلائی. پرامیس میں کبھی داغ نہیں لگاؤں گا. ارے داغ لگاؤ، داغ تو اچھے ہوتے ہیں. سرف ایکسل میٹک، ہاتھ جیسی دھلائی اب مشین میں. دیکھا کیا ہوتا ہے when you zam it. دادو یہ پیسے ہیں؟ یہ سکے ہیں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟ ان سکوں کی طرح یہ بھی ورثہ ہے. اس میں رشتوں کی خوشبو اور محبتوں کا ذائقہ ہے بیٹا. تو تم بھی وارث. ہمارا ورثہ ٹپال فیملی مکسچر، مکمل چائے مکمل گھر. کبھی سوچا آپ نے نیسلے پیور لائف کے 8 کلاس روزانہ آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟
नेस्ले प्योर लाइफ के 8 क्लास रोजाना रखें आपको हाइड्रेटेड और हेल्दी। नेस्ले प्योर लाइफ, जी उठे जिंदगी। मोहल्ले की ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ मेरी रुक्केबाजी नहीं चली? ये औरतों वाले केस की बात कर रहा है? वो तो दाइयाँ करती थी पहले। गाना। मेरे दादा के आगे मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। वाह 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 वाह, दामाद ढूंढने निकली हैं या दुपट्टे निकलवा रही हैं? अपनी शादी की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। भाई बड़े तस्करे सुन रहे हैं आपके कारनामों के। अरे जहेज में भैंस देंगे। शादी अपने जमालियाती हिस्स की तस्कीन के लिए नहीं की जाती है। ऐसा वक्त तो हर लड़की पर आता है। फिल्मी हीरोइन ऐसी कौन सी है जिसे तुम उठा सकोगे? I am gonna crush you. इन लिफाफों के अंदर कुछ सिचुएशंस बंद हैं। लव लेटर्स हैं। बज गई घंटी। जुमा शब 9:10 सिर्फ हम टीवी पर। पेश है मशीन का स्पेशल पाउडर सर्फ एक्सेल मैटिक। इसके पावर ब्रिसल्स दें कॉलर्स और कफ्स पे भी हाथ जैसी धुलाई। सर्फ एक्सेल मैटिक, हाथ जैसी धुलाई अब मशीन में। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ, आई एम सॉरी, मेरी बहन ने मुझे कहा था जब तुम वापस आती हो तो जोर से चीखा नहीं करो वेलकम बैक। तो वेलकम बैक व्यूअर्स। शेख आमिर हसन से बात हो रही है हमारी। हंस रही होंगी। तो शेख आमिर हसन से हम बात कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं आज मॉर्निंग विद हम के एक माहिर ड्रेस डिज़ाइनर तो हैं ही और बड़े बड़े काम करके हैं। उन कामों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक से पहले हम उनको एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसी सोच है उनकी रूह कितनी खूबसूरत है और एक्टिंग भी करते हैं साथ साथ। उसकी में बातें थोड़ी बहुत करते जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक काम करके आए हैं, कारनामा अंजाम देकर आए हैं, उसका ज़रूर जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको मिलवाएंगे राजा रियाज साहब से। हमारे पामिस्ट हैं और शेख आमिर हसन की हाथ की लकीरों को पढ़ेंगे कि क्या कुछ आगे बड़े बड़े काम करने वाले हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। राजा साहब, इनसे आपकी पहली मुलाकात होगी यकीनन, लेकिन इनके लिए बहुत एक अच्छी सी बात मैं कहना चाहूँगी। शेख आमिर हसन के लिए ये मशहूर है, ये कहा जाता है कि इनको इस दुनिया में बनाई गई हर चीज़ से मोहब्बत है। सही है? ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं हर चीज़ में बहुत शौक से, बहुत इंटरेस्ट से मैं हर चीज़ को देखता हूँ और सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ। आई मीन हर चीज़ इतनी खूबसूरत है बनाई गई। चले शेख साहब, आज आपको केमिस्ट्री सिखाते हैं। ज़रूर। 1 साल के बाद आप मेरा हाथ देख रहे हैं। 1 साल के बाद मैं आपका हाथ देख रहा हूँ। ये बात है कि शेख साहब आप दोबारा शुरू करते हैं स्टार्ट से ही। सबसे पहले तो मैं वही जैसे आपकी पर्सनैलिटी बताऊंगा, फिर अभी आपने 1 साल में क्या क्या तरक्कियाँ की हैं ये भी बताऊंगा। तो आप ही देख रहे हैं, हमारे साथी क्या देखेंगे? अच्छा सॉरी। अब अच्छा शेख साहब, जिन लोगों की ये जो लंबी उंगलियां होती हैं और पतली उंगलियां होती हैं, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, आर्टिस्ट तबीयत के लोग होते हैं। ये खुद भी तो बहुत टॉल हैं, तो ज़ाहिर है इनके हाथ पैर भी लंबे होंगे, उंगलियां भी लंबी होंगी। कुछ लोगों के बेशक लंबे हों लेकिन उंगलियां छोटी होती हैं, हथेली बड़ी होती है, तो टाल से कुछ नहीं होता। ये नहीं बात होती। ये उंगली की जो है ना साख्त होती है, इससे भी इंसान का पता चलता है। और देखें, एक डिज़ाइनर के हाथ में या आर्टिस्ट के हाथ में तीसरी उंगली का लंबा होना ज़रूरी होता है पहली उंगली से। और एक मैनेजमेंट के जो इंसान करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या बिजनेस हो, तो उनकी पहली उंगली तीसरी से लंबी होती है। मेरी भी थी तो शेख साहब की देखें, तीसरी उंगली काफ़ी लंबी है और इसमें सर्कल बना हुआ है। डिज़ाइनर या आर्टिस्ट तो आप पैदाइशी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ आपकी देखें छोटी उंगली काफ़ी लंबी है। छोटी उंगली होती है सनत की, साइंस की, तजारत की, तालीम की, तो ये जहानत को भी ज़ाहिर करती है। आपकी जब इस पोर से नाज़रीन यहाँ उंगली लंबी हो जाए तो ये इंसान काफ़ी ज़हीन होता है और जहाँ काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। और साथ जैसे उंगलियाँ देखें, एक सीधी नहीं है, गोरदार है।
डिटेल में जाने वाले लोग, आप छोटे छोटे नुक्तों को देखते हैं, I'm गहराई very में detailed, जाते हैं, yeah. आप किसी छोटे छोटे अगर जो चीज़ हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो आपकी नज़रों से छुप नहीं सकती। देखिए अगर डिटेल वर्क ना करें तो अच्छे डिजाइनर कैसे होंगे? अच्छा, इसी तरह अच्छा इंसान हर चीज़ के लिए डिटेल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखें इनकी दिमाग की लाइन भी यही कह रही है, दिमाग और ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक मिल के है। केमिस्ट्री में हम जब इतनी ज़्यादा मिली हो तो हम इसको नेगेटिव तस्वर करते हैं, लेकिन एक डिज़ाइनर के लिए ये पॉजिटिव अलामत बन जाती है, या अकाउंटेंट के लिए ये पॉजिटिव अलामत बन जाती है, क्योंकि ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पे नज़र रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जब इनको 95% चांस हो जीतने का तो फिर उसमें वो रिस्क लेते हैं। यानी कि पहला तो ये राजा साहब आप ऐसे कहते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे शौक होता जा रहा है ना इसका। तो आपने जो कहा ना कि ज़िंदगी और दिमाग की लाइन जो है वो अगर हटके होती है तो आपकी नज़र में पॉजिटिव होता है कि वो जल्दी रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बुरी बात होती है कि वो बड़े बेसब्रे होते हैं। सही बात है, हाँ ये भी है। लेकिन अच्छा अब देखें इनकी जो दिमाग और ज़िंदगी लाइन मिल के है ना, ये इनके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव भी है, अब सेंसिटिव भी बहुत है। बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत रोमांटिक हूँ, बहुत ही मूडी हूँ, सेंसिटिव हूँ। देखिए हमने तो खाली सेंसिटिव की बात की, आपने खामा में रोमांटिक की बात भी कर दी। इसी तरह देखें आपकी जो दोनों कनेक्टेड हैं बिल्कुल। दिमाग की लाइन, इसका रुख देखें डलवान है, ये कमर का आबार होता है, तख्लीकी आबार कहलाता है। तो जब दिमाग की लाइन यहाँ है तो हम कहते हैं इंसान तख्लीक कर सकता है, नए आइडिया दे सकता है, ठीक है, और एडवाइज़र बड़ा अच्छा होता है। तो कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी के लिहाज से आपको यही होना चाहिए था, एडवाइज़र होना चाहिए था, डिज़ाइनर होना चाहिए था, आर्टिस्ट होना चाहिए था जो आप हैं। अब देखें आपकी लाइफ लाइन, नाज़रीन देखिए वो से लोग सवाल करते हैं कि गैर मुल्क में जाना या गैर मुल्क में ट्रैवलिंग हो तो वो कैसा होता है। इनकी देखिए इनकी ये लाइफ लाइन का रुख ही बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि सारी ज़िंदगी आपने गैर मुल्क में ट्रैवलिंग की, गैर मुल्क में रहे, और ये आइंदा भी आपके साथ यही सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा अब देखें कि जो लोग सेलमेट होते हैं, आपकी देखें लक लाइन नाज़रीन देखिए कि इनकी ज़िंदगी की लाइन से निकली हुई है, वो ये अच्छे घर में पैदा हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बनाने में आपका अपना जद्दोजहद काफ़ी आपकी बड़ी है। माशाल्लाह आपने स्टार्ट से छोटी उम्र से तरक्कियाँ की, 23-24 की ऐसे ही आपकी लक से शाख निकलती है। This clock is brought to you by Pell. Change your life. Hadika ki choice. Pell. Change your life. दिन ब दिन आपकी जो है ना रोशन हो रही है, और बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन फेम लेने निकली हैं। जब भी एक ही वक्त में दो तीन फेम लेने निकले तो हम कहते हैं कि इंसान एक ही वक्त में दो तीन मुख्तलिफ शोबों में काम करता है और तरक्कियाँ हासिल करता है, दुनिया नाम पैदा करता है। शेख आमिर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा वायलिन सीखा था, पियानो सीखा था, स्कूल में था जब लंदन में, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया कभी। अच्छा अब देखिए कि इनकी दिल की लाइन देखिएगा कि दो शाखा बनी हुई है, बड़े लविंग बड़े केयरिंग है, लेकिन वो थोड़े से मैं क्या कहूँ कि दिल की लाइन जब नीचे गिरे ना तो इंसान हमेशा छोटे खाता रहता है, अपनों से गैरों से। अच्छा, जो भी कह रहे राजा साहब आप तो कहते हैं कि दिल की लाइन अगर नीचे गिरती तो सदमा होता है, वो क्या, वो कौन सी लाइन होती है? ये देखिए ये है दिल की लाइन। ये अगर दो शाखा हो तो बड़ा बंदा अच्छा प्यारा होता है, लविंग, दूसरों का ख्याल रखने वाला है। लेकिन जब ये दिल की लाइन पहली उंगली के नीचे गिर जाए तो ऐसे लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता, बल्कि इनको बेवकूफ तक बना लेते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत इजीली वल्नरेबल, नाइव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानबूझ के लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। ये इनको कहता है यार इसका कोई मजबूरी है कि छोड़ो इसको जनाब जी। तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा आता है, और इल्म अदब से आपका ये सिलसिला। मुझे बताएं वो लाइन, वो सदमा जो आप कहते हैं अक्सर खुदा न खासा कोई होता है, तो वो कौन सी होती है वो लाइन? कौन सा सदमा? राय साहब आप नहीं कहते हैं वो दिन की लाइन से वो शाख नीचे बिल्कुल गिर जाती है, तो वो क्या होता है? देखिए वो एक अलग मैटर है। वो ये होता है कि जब भी कभी दिल की लाइन, ये दिल की लाइन छोटी सी शाख लक को क्रॉस करे और लक के बाद हो तो वो एक इमोशनल शाख पहुंचता है, अपनों से पहुंचता है। लेकिन जबकि दिल की लाइन का पहली उंगली के नीचे गिरना, ये अजीज़ रिश्तेदारों और मोहब्बत के मामले में धोखा खाने की अलामत होती है, यानी कि लोग चीटिंग करते हैं। तो इनकी वो चीज़ यहाँ होती है लक लाइन को। कोई बड़ा सा धोखा खाया है कभी? मेरे साथ तो कभी चीटिंग एज सच तो नहीं हुई, लेकिन स्पेशली लव लाइफ में मेरा नहीं ख्याल, बट गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। और इसी इंसान तरह क्या करे, क्या कई दफ़ा कैलकुलेशन नहीं ठीक होती हैं, हम तो सब आपका मिजाज भी तो ज़रा डिफरेंट है ना, हर किसी से मोहब्बत हो जाती है, क्या करें? अच्छा एक इनकी ये भी देखें, ये भी एक बात होती है जब मैं वो भी बताता हूँ ज़रा। अच्छा ये देखें, इसका एक हल्का जोर होता है,
ये जब होता है तो ये आर्टिस्ट लोगों के हाथ में होता है, ओशन प्लस लोग होते हैं, एक हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ये दो दो हों तो ये नेगेटिव होता है। क्या होता है बताएं। आज सब देख रहे हैं इनको। ये देखिए एक लाइन हो तो बहुत अच्छी, हाँ। अगर ये दो बनी हो तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, यानी कि बंदा लाओ प्यार में घुसा रहता है। तो माशाल्लाह वैसे जनरली आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। और आइंदा आपकी जो मेरी प्रोडक्शन है ये कि आपकी लक का रुख है ही पहली उंगली की तरफ, आप इंशाल्लाह ताला तरक्कियाँ करते रहेंगे, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। और लक लाइन आग में तरशोल है, यानी कि मुल्की और बैन अल-अक़वामी शोहरत अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी हुई है, आपने कैसे कैश करानी है अपनी मेहनत से। और कुछ सवाल करना बहुत चाहिए? शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। मैं तो बस अभी सोचूंगा, बड़ा ही प्यारा, वेरी नाइस। इनको छेड़ना नहीं चाहिए हमारे फामिस्ट जो है ना, कोई सवाल नहीं करना है। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज बीन वेरी डिटेल, इतना उन्होंने तफसील में बोला और बताया सब कुछ, और बड़ा आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। इवन लास्ट टाइम वाज ग्रेट। चलिए राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी दिनों के बाद आए हैं राय साहब, तो ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और चूंकि शेख आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल फेम मिला है और इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम हुआ है, तो हम ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सी चाबी है, किस ताले की चाबी इनको क्यों दी गई है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। पेश है मशीन का स्पेशल पाउडर सर्फ एक्सेल मैटिक। इसके पावर ब्रिसल्स दें कॉलर्स और कफ्स पे भी हाथ जैसी धुलाई। सर्फ एक्सेल मैटिक, हाथ जैसी धुलाई अब मशीन में। जाने की है जल्दी, फिर देर कर दी। कभी इन्होंने दी है खुशी और कभी गम, कभी नफरत और कभी प्यार। ये हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्टर्स जिन्होंने इंडियन सिनेमा को दी है एक नई पहचान। कम एंड सेलिब्रेट द जर्नी विद मी, कबीर बेदी, ऑन डायरेक्टर्स कट। डायरेक्टर्स कट इतवार शाम 6:50 सिर्फ हम टीवी पर। तेरी शोख चंचल सी हंसी, तेरी आंख का काजल, राज करता है मेरी दुनिया पर, मेरे दिल पर। चमकते तारे, महकते फूल, सारे नगमे, सारे गीत भर दूंगा तेरे आंचल में। तुझसे हटकर मेरी हस्ती क्या है, कुछ भी नहीं। खाक हो जाऊंगा मैं तेरे जाने के बाद। This program is brought to you by New Sunset Black Shine UV प्रोटेक्टर के साथ, क्योंकि लाइफ can't wait। This program is brought to you in association with हबीब मसाला मिक्स, लाजवाल धुन की तरह लाजवाब खाने। एंड तेरे जाने के बाद आज शाम 9:10 सिर्फ हम टीवी पर। पेश है मशीन का स्पेशल पाउडर सर्फ एक्सेल मैटिक। इसके पावर ब्रिसल्स दें कॉलर्स और कफ्स पे भी हाथ जैसी धुलाई। सर्फ एक्सेल मैटिक, हाथ जैसी धुलाई अब मशीन में। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक में बड़ी काम की बातें हमने की। शेख आमिर हसन हमारे साथ मौजूद है, हमारे गेस्ट है मॉर्निंग विद हम के, और जो हमारे पामिस्ट मौजूद थे राजा रियाज साहब, उन्होंने भी हमारे गेस्ट के लिए कुछ ऐसी पेशेंगोइयाँ की हैं कि सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा।
کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاور میں آنے والے ہیں. وہ کون سا پاور ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. بس جس بھی پاور میں ہے خدا سے مس یوز نہیں کیجیے. کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ پتا ایک بڑی پیاری لائن تھی اسپائڈر مین فلم کے اینڈ میں, ود گریٹ پاور کمز گریٹر رسپانسبلٹی. تو یہ بہت ضروری ہے زندگی میں انسان کو ہمیشہ ارد گرد دیکھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ گراؤنڈ پہ رکھنا اینڈ میکنگ شیور دیٹ جہاں پہ بھی آپ ہیں اس سے کسی کو بھی جو فائدہ ملے کوشش کریں. مطلب ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا ہے نا کہ جتنا آپ کو پاور مل جاتا ہے فائدہ دینے کے بجائے فائدہ لیتے ہیں اس پاور کا, اور پھر بس پھر یہی تو حال ہوتا ہے نا. دیکھیں ہمارے ملک میں جو تھوڑی دیر پہلے ہم باتیں کر رہے تھے, بیچارے جو انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو وہ لوگ, آپ تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہیے, وہ بیچارے اپنی لائف کو کیسے انجوائے کریں عامر؟ پتہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, خوشی پیسوں سے نہیں آتی, خوشی دوسروں سے نہیں آتی, خوشی اپنے آپ سے آتی ہے, دکھ بھی اپنے آپ سے آتا ہے. ہر جو بھی سوچ ہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں ہے. تو مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں, آئی مین ناٹ دیٹ پیپل تھنک کہ جی میں ہمیشہ خوش ہی رہتا ہوں, بٹ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں انسان اچھے پہلو کو دیکھے, اچھی چیزوں کو دیکھے. مطلب تھوڑی دیر پہلے جو میں سوال پوچھ رہی تھی اس کو تھوڑا سا آپ چاہیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوتا ہے, ان لوگوں کو ہم کہاں فٹ کریں گے جو بھوکے سو جاتے ہیں, جو کچھ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں؟ آپ نے تو اپنے سارے شوق پورے کیے, آپ کو تو آگے ایک بہت خوبصورت فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اپنی زندگی کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہی میری زندگی ہے, ایک ہی ہے, اور اسی کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے. اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے نا تو اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جو آپ کو اچانک آگے چل کے اس طرح یہ دروازہ کھلتا اور ایک دم سرپرائز ملتی ہے. تو یو نو, اور پھر میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ کیا نظام ہے کہ وائی آل دیز ڈفرینسز, بٹ دین پانچوں انگلیاں بھی مختلف ہیں, ایک ہاتھ ہے, ایک پیر ہے, ایک یہ ہے, یو نو بہت ساری چیزیں مل کے ایک انسان بنتی ہیں, بہت ساری چیزیں مل کے ایک. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد یا مطلب ہوتا ہے, اور وہ انسان کی اس میں نہیں ہے پاور میں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی کا کیا مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟ ہر انسان سوچتا ہے نا کہ شاید مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, کوئی ایسا کام ہے آپ کو کرنا؟ ہاں میں لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. تو مجھے کئی دفعہ میں the word مایوس, at times I do get a little so disappointed because I know exactly what I am supposed to or meant to do. You know, میں بہت ساری چھوٹی سی عمر میں کیوں میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھیں. I mean the strange things would happen. Why? I am but after all just a human being from Lahore, you know. I may be British as a citizen, but I'm Pakistani. تو میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی تھیں یہ چیزیں ساری, you know, wonderful big things. اور ابھی جو ریسنٹ جو وزٹ تھا ہمارا, میں گیا تو بن کے صرف ایک ایز اے ڈیزائنر گیا تھا. And why me again? You know, I'm a British designer. Many years ago, I was claimed a British designer by one of the biggest fashion historians of the world, which is Percy Savage, in the Mayfair Times, amongst people like Vivienne Westwood, John Galliano, Catherine Hamnett. So, تب سے I have represented Britain in many countries. تو آپ پاکستان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو پھر جب میں ہوں تو پاکستانی, اور میرا نام جو ہے وہ کوئی علی خان تھا, میرا نام شیخ عامر حسن, اس سے زیادہ مسلم یا پاکستانی نام. وہاں بھی یہی نام رکھتے ہیں نا؟ بالکل, never ever ever, it is my name, I'm so proud of it, you know. And تو ادھر پھر جہاں پہ میں جاتا ہوں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے برٹش ڈیزائنر پاکستانی اوریجن. ابھی بھی جو پورا ویسٹ آیا ہوں, ابھی گوگل پہ اگر کوئی بھی میرا نام کر کے اس کو آپ چیک کریں گے تو ایسے ایسے ملکوں میں اور ایسی ایسی زبانوں میں اس وقت ہماری ریسنٹ جو سکسیس ہے یورپ میں ہوئی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اور بلکہ ان فیکٹ ون آف مائی ڈریسز ریسیوڈ ہیوج انٹرنیشنل اکلیم, پوری دنیا میں دکھایا گیا. آپ ایک مطلب آر یو دی اونلی برٹش ڈیزائنر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا اور بھی ہیں پاکستان میں؟ آئی ایم ناٹ ویری شیور. آئی مین میں جس زمانے میں کر رہا تھا آج سے 10 سال پہلے, آئی واز ڈریسنگ, وہ بھی اچانک ایک دم ہوا. آئی واز اسٹارٹنگ ایٹ دی لندن کالج آف فیشن. جب میں نے تعلیم ختم کی تو بس چیزیں بہت وہ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں. پھر زی ٹی وی نے مجھے بہت انٹرویوز وغیرہ کر کے اٹھا دیا, اور میں گروورنر ہاؤس میں ایک شو ہوا بہت بڑا جس میں نے حصہ لیا. اچانک راتوں رات میری زندگی بدل گئی. مجھے یاز ایک بہت بڑا فیشن ہاؤس ہے انگلینڈ میں, اس نے مجھے چیف ڈیزائنر ہائر کر دیا. میری زندگی بدل گئی. اور پھر وہاں سے وہ وقت ایسا تھا جس میں
इमरान और जमाइमा की शादी हुई थी तो उनसे दोस्ती थी, तो जमाइमा के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो वो एकदम मैं सडनली आई वाज कैटapulted टू मेन स्ट्रीम फेम and I was never commercial. फिर वो Diana और Dame Barbara Cartland and a lot of important people, BBC World News, Harper's and Queen, a lot of things. तो तब से अभी तक मेरा as a British designer Pakistani origin, I'm invited every year to different parts of the world. आपके बारे में यकीनन बहुत कुछ लोग, बहुत कुछ साथी हमारे जानते होंगे, आपने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े आपको अवार्ड्स मिले हैं, ये सारे वो रखे हुए हैं न्यूज़पेपर्स और सब, जिसमें आपके बहुत कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा लिखा हुआ है. लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, बॉस्नियन गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत बड़ा ऑनर दिया है और वो यकीन पाकिस्तान के लिए भी एक ऑनर है. तो वो थोड़ा सा हम जानते हैं, दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को वो फुटेज, ताकि उसके बारे में हम बात कर सकें. friends. ये लोग इतना लिफ्ट कराते हैं आपको, ये आखिर क्या बात है? मैं लोगों से प्यार करता हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं आप अपने काम से भी बहुत प्यार करते हैं. बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप से भी बहुत प्यार करता हूँ. ये सबसे बड़ी बात ये होती है. लोगों को बहुत बुरा लगता है, अजीब लगता है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हर किसी को अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म जो है ये एक इमानत है खुदा की, और ये मेरी माँ की इमानत है मेरे पास, और मैंने एक दफ़ा ज़िंदा रहना है. अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगा, अपने आप से प्यार नहीं करूँगा, तो मैं किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, ये तमाम जो सारी देखी, ये सारे मुख्तलिफ इवेंट्स की थी, ये हर साल होता है. जैसे पिछले साल I was invited in Montenegro at the International Fashion Festival with the 3 greatest legends of fashion world, Renato Balestra, Rocco Barocco, Gattinoni and myself. Abhi, again, some jury sat in Europe and they took out my name for the Banja Luka Fashion Fair. It's a fashion week in Banja Luka in Bosnia. Banja Luka वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, जहाँ पे जो recent war भी हुई थी, जो आपको पता होगा सारा. वहाँ पर 13 European, I would like to please share it with everyone, 13 European designers took part. And I was the chief guest. And this was on the last day, on the 5th of May, I was asked to show my collection amongst all the designers. And on my collection, the work you just saw, we received not one, but a series of different honors and awards, including one from the Prime Minister, then 2 different ministers, Minister of Trade and Tourism, Minister of Culture. उसके बाद फिर 3 डिफरेंट शहरों के मेयर्स ने हमें बहुत इज़्ज़त दी. पाकिस्तान को हमने बहुत वो अपने साथ प्रमोट किया, और जो सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ये अवार्ड्स और ये रिकग्निशन और अचीवमेंट्स तो चलती रही हैं और चलती रहेंगी इंशाल्लाह. लेकिन जो सबसे बहुत ही बड़ी बात थी वो ये, जब मैं आई वाज टेकन 2-3 शहरों का मैंने एक दौरा किया था गवर्नमेंट के साथ एक दिन. तो हम गए थे द सिटी ऑफ नोविग्राद. Novigrad is an old historic city of Bosnia, which is like Lahore, जैसे पाकिस्तान का है. तो उनके मेयर ने, to my utter surprise, I mean they all loved me very much. वहाँ पे उन्होंने मेरा डिनर किया, मुझे मछली का बहुत शौक है. On the river side, they had this amazing dinner for me. Then the mayor stood up and said a little speech in my honor, and this is what I was given. ये वो चाबी देखिए ज़रा. This is the key of the city of Novigrad.
and you know I almost went into a shock because ये एक ही होती है की जी या बहुत सारी उन्होंने होती हैं? okay 9 keys were made by the government. First key was given to the Lord Mayor of Vienna, Austria, and the second was presented to me, and the 7 keys are still held by the government of Bosnia. So this has been in all the newspapers, on the front headlines, on television, everywhere. So I wanted to share it with